दर्ज। काजीपेट कोच फैक्ट्री का कयाम कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है। पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने दौरे वरंगल के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी और रियासत की टीआरएस हुकूमत रियासत की तकसीम के कानून पर अमलावरी में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर काकतीय यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एमएलसी उम्मीदवार रामलू नायक को कामयाब बनाने की वोटर्स से अपील की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत की टीआरएस हुकूमत ने काकतीय यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से फरामोश कर दिया है। इस दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने वरंगल के वकला से भी मुलाकात की। ప్రాజెక్టు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజియన్ ప్రాజెక్టు 7 ఏళ్ల తర్వాత ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ అక్కడ బీజేపీ పూర్తిగా వైఫల్యం చెంది ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేదని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. అసలు ఆశ్చర్యకరం, కాజీపేట్ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ గురించి టీఆర్ఎస్ అడగదు, బీజేపీ ఇవ్వదు. తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా ఓ పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ప్రజలకు మేము మాటిస్తున్నాం, ఈ విషయంలో ఏ స్థాయిలో పోరాటం చేస్తాము. ఈనాటికైనా ఏనాటికైనా కాజీపేట్ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సాధించుకుంటాము. మరి ఎందుకు ఇది జరగడం లేదంటే బీజేపీ వాళ్ళదేమో రైల్వేస్ని ప్రైవేటీకరణ తీసుకుపోవడం, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకేమో ఈ విషయంలో శ్రద్ధ లేదు. వాళ్ళకి కేవలం ఎక్కడ వాళ్ళ కమిషన్లు వస్తే ఆ పనుల మీదనే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్. ఏ కమిషన్ భగీరథనో మరో కాళేశ్వరమో ఎక్కడ వాళ్ళ కమిషన్లు వస్తాయో, కాజీపేట్ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మీద కమిషన్లు రావు కాబట్టి ఏనాడు శ్రద్ధ చూపించలే. 4 ఎంపీలు ఏది భారతీయ జనతా పార్టీకి, ఇక్కడ తర్వాత ఏమో టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు. ఇవాళ క్లియర్ కట్గా కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇండియాలో ఎక్కడ పెట్టే అవసరం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం డిసైడ్ చేసినందుకు వాళ్ళు ప్రజలు వరంగల్ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. తెలంగాణ ప్రజలకు జూటా వాగ్దానాలు చేసి ముఖ్యమంత్రి అయిండు, తగిన గుణపాఠం చెప్తాం. గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో 100కు 100% నేను గెలుస్తున్నా. ప్రశ్నించే గొంతు కౌన్సిల్కి పోతుంది. మీ తరపున, మీ సమస్యల తరపున, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా తరపున మరియు జర్నలిస్టుల తరపున, అధ్యాపకుల తరపున, ప్రైవేట్ లెక్చరర్ల తరపున, కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల తరపున, బేసికల్గా నేను ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్ని. అన్ని విషయాలపై అవగాహన ఉంది. తప్పకుండా నేను విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ కానివ్వండి, ఫీజు రీమెంబర్స్మెంట్ కానివ్వండి, వీళ్ళ రిజర్వేషన్ల మీద కానివ్వండి, అదేవిధంగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ కానివ్వండి, ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ కానివ్వండి, దాని మీద మాట్లాడతా. కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదు. ఏముందంటే ఒక నోటిఫికేషన్ వేస్తారు, ఆ బార్లకు బీర్లకు ఒక నోటిఫికేషన్ వేస్తారు. మొన్న 150 బార్లకు నోటిఫికేషన్ వేసారు. కానీ 150 డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్న ఉద్యోగాలకు 7 సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క నోటిఫికేషన్ లేదు. ఈ ప్రభుత్వానికి తగిన గుణపాఠం చెప్తారు. 100కు 100% నేను గెలు. नलगुंडा में बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने नलगुंडा में मुनक्किद इंतखाबी तशहीरी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला केसीआर पर कड़ी तनकीद की। बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने इंतखाबात के मौके पर किए वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने बीजेपी एमएलसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की वोटर्स से अपील की। बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने डिग्री कामयाब उम्मीदवारों को बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया था, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। चालान से बचने के लिए कुछ लोग मुख्तलिफ तरह की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अब सोशल मीडिया और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया है। चालान से बचने के लिए कुछ लोग नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं। एक नंबर को मिटा दिया जाता है या पिछली सीट पर बैठने वाला शख्स नंबर प्लेट पर पांव या और कोई चीज़ रख देता है, जिसकी वजह से वो चालान से बच जाते हैं। साइबराबाद पुलिस ने सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए ऐसे अफराद पर भारी जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी न करने का आवाम को मशवरा दिया। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि अमरावती को रेलवे लाइन की ज़रूरत नहीं है।
मरकज का कहना है कि रियासती हुकूमत अमरावती में रेलवे लाइन के लिए संजीदा नहीं है और न ही रकम खर्च करना चाहती है। इसी तरह मरकज ने तेलंगाना में भी रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम की मंजूरी दी थी। अब मरकज ने वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना के लिए भी रेलवे कोच फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री को RTI दरख्वास्त गुजार की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर वजारत रेलवे ने यह मालूमात फराहम की। 9 साल तक मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम देने वाला फौजी जवान आज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ऑटो चलाने पर मजबूर हो गया है। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में रहने वाले शेख अब्दुल करीम साल 1967 में आर्मी में शामिल हुए। 9 साल तक उन्होंने सरहद पर खिदमत अंजाम दी। 1971 की हिंद पाक जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया, कई मेडल्स हासिल किए। बेहतर खिदमत के एवज उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें भोंगीर के वलीगुंडा मंडल में 5 एकड़ अराजी फराहम की थी। आज ज़मीन पर कब्जा हो गया है। शेख अब्दुल करीम के पास न तो रहने के लिए घर है और न कमाने का कोई जरिया है। फिलवक्त शेख अब्दुल करीम ऑटो चलाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से अलॉट करदा अराजी की फराहमी और रहने के लिए मकान फराहम करने का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया। मैं आर्मी में 14 इयर्स मेरा फादर भी आर्मी से थे। उनका डेथ के बाद 14 इयर्स में बॉयज़ आर्मी में ज्वाइन हो गया। 3 इयर्स बॉयज़ आर्मी में करने के बाद आर्मी में मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं आर्मी में 9 इयर्स ड्यूटी करा। 1971 में स्पेशल अवार्ड खेमकरण सेक्टर लाहौर बॉर्डर से किया हूँ। उस पीरियड में आने से पहले मुझे गवर्नमेंट 5 एकर्स लैंड दिए। 22-25 साल के बाद गांव के 7 आदमियों को, उसी विलेज के 7 आदमियों को मेरा ज़मीन दे दी गई। सर्वे नंबर 183, विलेज गोल्लेपल्ली, वलीगोंडा मंडल, RDO चौटुपल। मैं ट्राई कर रहा हूँ तो कंप्यूटर्स बंद है। अभी गवर्नमेंट से भी ऑर्डर्स नहीं आए। अभी आने के बाद हमको देते बोल के 2 साल कर दी, 1 साल हो गया। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को जो ज़मीन दे रहे हैं वो ज़मीन के मेरे को पेपर्स दिला दे। CM साहब की बहुत मेहरबानी होगी। और दूसरा, मैं 71 इयर्स का हूँ, तो मैं अभी अपनी लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ फेस कर रहा हूँ। फेस करने के लिए मैं ऑटो चला रहा हूँ। मैं देखता हूँ ऑटो में हर एरिया के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है 4th फ्लोर 5th फ्लोर पूरा गवर्नमेंट के घर बना के दिए हैं। लेकिन मैं 2 साल से अप्लाई कर रहा हूँ। हर 2 साल से अप्लाई कर रहा हूँ। 2 साल से ज़्यादा से डॉक्यूमेंट मेरे पास है। CM साहब को, कलेक्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब से भी मिला। सबसे मिलकर मैं लेटर दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को पूछ रहे नहीं, मेरे को दे रहे नहीं। मैं गवर्नमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि आप जो 2 डबल बेडरूम जो मकान बन रहे हैं उसमें हमारे एक्स सर्विसमैन कोटा भी अलग होता है। हमारे 2 यूनियन भी ट्राई कर रहे हैं, आपसे कई बार मिले हैं कि हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ ज़मीन दीजिए, घर दीजिए, लेकिन अभी तक उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। दोबारा आई एम रिक्वेस्टिंग कि हमको जो है जो मैं हूँ, जैसा मैं तकलीफ ज़दा हूँ, मेरे को रहने के लिए शटर नहीं है इस पीरियड में, तो अगर हमको डबल बेडरूम में घर मिल जाए तो बहुत बड़ा मेहरबानी होगा। वज़ीर आला KCR ने आज दोपहर यादाद्री का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन किए। वाज़ेह की रियासती हुकूमत ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तरक्की के लिए 1200 करोड़ रुपयों का खुसूसी पैकेज मंजूर किया है। इस रकम के जरिए मंदिर के अहाते में मंडप की तामीर, लाइटिंग सिस्टम, मंदिर के लिए खुसूसी सड़कों की तामीर और दीगर शामिल है। तेलंगाना हुकूमत ने अब तक 850 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वज़ीर आला ने आज मंदिर का दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया। ओहदेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। गोवा में मुनक़्क़दा फुटबॉल इंडियन सुपर लीग में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने कामयाबी हासिल की है।
टीम की कारकर्दगी पर कोच ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि इस सीज़न में हैदराबाद को 5वां मकाम हासिल हुआ। कोच ने कहा कि मुस्तकबिल में हैदराबाद फुटबॉल क्लब पहले मकाम पर अपना कब्जा जमाएगा। जुबली हिल्स में मुनक़दा मीट द प्रेस में कोच ने ये बात कही। About the season, of course, you always you need to be more ambitious, even after this very good season. We feel that maybe we could arrive to the semi-final, and let's see after what would happen. But I think that it's very difficult to look for something to criticize these players in this season. I think that sometimes there are a lot of games that you can win or lose for small details, and of course that we try to improve in every training session, in every game, but of course that is not only to look the next game, no? We have to look next season too, and of course that we have to improve in some areas if we want to arrive to the top 4, because now when you are 5th, the next step is enter in the semi-finals, no? for the title, and we have to improve some areas. I think more offensive, more offensive than defensive. तेलंगाना में कोरोना वायरस के 152 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल एक ही दिन में 114 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,99,406 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 1,637 हो गई है। रियासत भर में 1,948 एक्टिव केसेस हैं। 835 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 25 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।